द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो शुरू करते हैं। इन 1848 Patrick Soriot, a French art, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. The first print, figure 1 of the series, showed the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की। उन्होंने उस दुनिया का सपना दिखाया जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य कहा। इस श्रृंखला का पहला चित्र यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाता है, जिसमें सभी आयु वर्ग और सामाजिक वर्गों के पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जो एक लंबी कतार में चलते हुए स्वतंत्रता की मूर्ति के पास से गुजरते हुए उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberties as a female figure, or you can recognize the torch of lightenment she wear in one hand and the character of the right of man in the other. On the earth, in the foreground of the image, the sacred remain of the symbol of absolute individuation. फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दर्शाया था। उसे एक हाथ में प्रबोधन की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का जाट है। चित्र के सामने जमीन पर निरंकुश शासन संस्थाओं के प्रतीकों के टूटे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। In Sorio Autopan vision identified throughout their flag and national custom. Leading the procession while past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, which by the time were already nation state. सोरियो की इस आदर्शवादी कल्पना में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में समूहबद्ध किया गया है, जिनका पहचान उनके झंडों और राष्ट्रीय वेशभूषा से होती है। जुलूस में स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, क्योंकि उस समय तक के ये दोनों देश पहले ही राष्ट्र बन चुके थे। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reset the statue. She is followed by the people of Germany wearing the black, red and
gold flag. Interestingly, at the time when Soyuz started this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principles into a nation state under a democratic constitution. क्रांतिकारी तिरंगे झंडे से पहचान जाने वाली आकृति अभी अभी स्वतंत्रता की मूर्ति तक पहुंची है। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। जब सोर्यू ने यह चित्र बनाया उस समय जर्मन लोग अभी तक एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। उनके द्वारा उठाया गया झंडा 1848 में वे एक उदारवादी आशाओं का प्रतीक था, जिसके माध्यम से अनेक जर्मन भाषी देशों को एक लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र में एकजुट किया जाना था। Following the German people are of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above treaty sign and angle zone upon the sands. They have been used by the artist to symbolize Britannicity among the nation of the world. जर्मन के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया टू सिसिलीज का राज लम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग दिखाए गए हैं। ऊपर आकाश से ईसा मसीह संत और देवदूत इस दृश्य को देख रहे हैं। कलाकार उन्हें दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक बनाने के लिए चित्रित किया है। This chapter will deal with many of the issues of visualized by Sergio in Figure 1, drawing the 19th century nationalism emerged as a France which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. The end result of the change was the emergence of the nation state in place of the multi-nation dynastic empires of Europe. सोर्यू के द्वारा दर्शाए गए कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभारा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक दुनिया में बड़े बदलाव ला दिए। इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि यूरोप के बहुराष्ट्रीय
वंशानुगत साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। The concept and practice of a modern state in which a centralist power exerts serving control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation-state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or discord. आधुनिक राज्य की अवधारणा और उनकी कई प्रणालियां जिनमें एक केंद्रीकृत सत्ता स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभु नियंत्रण रखती है। यूरोप में लंबे समय से विकसित हो रही थी, लेकिन राष्ट्रराज वह था जिनमें केवल शासक नहीं बल्कि अधिकांश नागरिकों में भी साझी पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित हुई। These commons did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the action of leaders, process through which nation state and nationalism come into being in 19th century यूरोप। यह समानता प्राचीन काल से मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे संघर्षों, नेताओं के प्रयासों और हम लोगों की भागीदारी से गढ़ा गया। यह अध्याय उन विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान करेगा जिनके प्रक्रिया का अध्ययन करेगा जिनके माध्यम से 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए।